ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਗੀਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਟ। ਛੱਡ ਖੜੋ ਦੇਖਨੈ ਮਾਹੀ, ਚਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਗੀਤ। ਹੱਥ ਮਰੂੜੈ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਿਆਹੂ ਆਸੀਤ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੀਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਬਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਪਰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕੱਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਦਾ?
क्योंकि पहली कोल उन्हें वेख लिया भी ये सुख नहीं मिले, फिर दूजी पकड़ी। जिमें आप छोटी जी विचार कर लीए, मेरे को घर है, शायद छोटा तो सुख नहीं, बड़ा ले लिया, पर बड़े तो भी फिर प्रतीत होया नहीं ये भी सुख नहीं, फिर और बड़ा ले लिया, फिर उहदे च भालिया भी ये सुख होएगा नहीं, फिर गड्डी वड्डी ले ली, फिर उदों वड्डी ले ली, फिर जिमें जिमें भटकना बनती गई पदार्थों की, उवें उवें एक नूं छड्ड के दूजे दे विचों सुख भालदा मनुख। हुंदा औखा है, वो सुख मिलता कोई नहीं, हुंदा औखा है। दिन रात अपना जीवन सगों साह लेना औखा हो जाता है, इतनी हुमस हो जाती है जीवन में। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बड़ी प्यारी बात समझाई है। वो समझाई भी बंदिया अपने अंदर झात मार के देख, जिमें भादों के महीने च एक भरम पिया रहिंदा है, इस तरह साड़ी सारी जिंदगी च भरम पिया रहिंदा भी इन्हां चीज़ों चों मैनूं सुख मिल जाना। याद रखियो, गुरु दोवें चीज़ां बराबर रखते हैं, एक पदार्थ एक परमार्थ। गुरु कहते ने तेरे कोल पदार्थ भी होवन पर सुख लैण वास्ते परमार्थ भी होवे, मालिक दी साईं दी इबादत भी होवे, साईं दा शुक्र भी होवे। सुख नाही रे हर भगत बिना, रब्बी इबादत तो बिना सुख नहीं मिल सकता। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। हुण इत्थे किसी पदार्थ का ना नहीं है भी जे तू सदीवी सुख चाहुंदा तो आप पदार्थ प्राप्त कर लै फिर तेनू सुख मिलेगा। किसी घर का, किसी धीआं पुत्तां दा, किसी कारोबार का, किसी खाण वाले पदार्थ का जिक्र नहीं है, शरण राम की ले का जिक्र है। असी फिर भी परमार्थ नहीं समझ पाते। खोजत खोजत तत् विचारियो, दास गोबिंद परायण अबनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माही मिटावो। मालिक के चरणों विच आके अंदरों संतुष्टि बना के, अंदर एक पदार्थों तो ऊंची बिरती करके मालिक के चरणों विच जुड़ के फिर ही सुख मिल सकता है। बस जेडे गुरु चरणों में आ गए उन्होंने भरम नहीं रह गया, वो भरम चो निकल गए। भरम हुंदा की है? भरम उन्होंने कहते ने माधवे क्या कहिए, भ्रम ऐसा जैसा मानिए खोए ना तैसा। हर बारी अंदाजा ला लेने बदल चढ़ के आया, मीह पेगा, ठंड होएगी, सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं। इस तरह साडे जीवन की कहानी, आ पदार्थ में प्राप्त कर लिया, आ पदवी प्राप्त कर ली, इतनी माया प्राप्त कर ली, हुण मैनूं सुख मिलेगा। हजूर कहते बड़े बड़े जो ढीसा लोग तिनको व्यापै चिंता रोग, सगों होर दुखी हो गया। जे सुख चाहुंदा है फिर सच्चे की गोद विच है, मालिक की गोद विच है, सच्चे की इबादत विच है। आओ शब्द नाल जुड़िए। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने इस महीने विच जिक्र किया है, एक हेत वो है जिहड़ा संसार दा है। हेत मतलब हित, हित मतलब प्यार प्रेम। एक हेत वो है जिहड़ा सच्चे साईं दा, रब दा, परमेश्वर दा, गुरु दा है। उन्होंने किसी नाम नाल भी याद कर। हजूर कृपा करते ने भादोए भरम भुलाणियां। एक बेनती होर करा भी, अक्सर सतगुरु जी ने जेड़े महीनों के प्रचलित नां ने वो नहीं वरते, बल्कि अपने वालों नवे नां दिते ने। जिमें आम भाषा विच, आम बोली विच भादरों या भादो शब्द कहा जाता है, पर गुरुदेव ने इसका नाम रखा भादोई। भादोई का मतलब दो प्यार। दो प्यार ये भरम है, प्यार एक नाल ही हो सकता है। ये दो प्यार वाले जिहड़े भरम ने, उहदे विच भुल के जीव किवें खुआर हुंदा है, सारे महीने च उहदा जिक्र है। भादोए भरम भुलाणियां, जिहड़ियां जीव इस्त्रियां भरम विच पै के भुल गईयां, उन्होंने अपने मालिक नालों प्यार तोड़ लिया।
मैं एक बारी फिर बेनती करनी चाहुंदा, आपां कई बारी इस गल का जिक्र किया, गुरबाणी विच सूही राग विच कुचज्जी ते सुचज्जी ये दो पवित्र बाणियां ने। कुचज्जी की करती है? कुचज्जी पदार्थ नाल स्नेह ला लैंदी है, मालिक नूं भुल जाती है, उसकी परवाह नहीं करती। सुचज्जी की है? वो कहती मालिक जी जे तू मेरे नाल है तो सब कुछ मेरे नाल है, पदार्थों का सुख भी तेरे नाल है। दो ही पंक्तियां कह दियां। कुचज्जी की निशानी है? शिव जी आखते ने, कहते उन्हें अपने जीवन के अंदर सोना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो, छे वस्तु शह दित्तियां, तिन स्यो लाया चित जियो, मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, हाँ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो, मालिक दे कोल नहीं बैठी। सुचज्जी की है? जां तू तां मैं सब को, तू साहिब मेरी रास जियो, तू अंतर हो सुख बसा, तू अंदर बसना तो मैनू सुख मिलता है। गुरमत ने किते ये नहीं किया भी पदार्थों को त्याग जाइए, पदार्थों विच रहिंदियां शुक्र साईं दा कर लईए बस। भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा खेत, जिन्हां ने दूजे नाल खेत ला लिया मालिक नूं छड्ड दिता। लख शिंगार बनाया कार्ज नहीं केत, इनू भी समझ लेना। हर मनुख के अंदर हौमे का अंश है, कोई बहुत विरला पंजा गुरु की कृपा वाला इहदे तो बचदा है। हुण हौमे दे विचों ये भावना है भई मैं धर्मी बना ना, मैं धर्मी दिसां, ते दिसण लई श्रृंगार करना पैंदा, बनन लई किरदार बनाउणा पैंदा। मैं बड़ी बारी तुहाडे चरणां विच बेनती कीती है, श्रृंगार अते किरदार दो चीज़ां ने। किरदार अंदर होण करके, किरदार तो जीवन का करैक्टर है, जीवन का चाल चलन है, इनू बाहर नहीं दिखाया जा सकता। किरदार का प्रगटावा श्रृंगार नहीं होता है। कोई इस्त्री अपने पति दे कितने को प्यार की पात्र है, ये उसके श्रृंगार तो पता लग जाता है, ये उसके श्रृंगार तो प्रगट हो जाता है। दुनिया में किधरे भी झत मार लो, किरदार के श्रृंगार तो बराबर चलते हैं। एक डॉक्टर बनया, उन्हें लंबी मेहनत की, किरदार बनया, उसका किरदार बन गया, एक नूं वर्दी मिली, ये श्रृंगार है। एक पुलिस ऑफिसर बनया, उन्हें लंबा समय पढ़ाई की, किरदार बनाया, उन्हें एक वर्दी मिली, एक श्रृंगार मिलिया। पर वो श्रृंगार उहदे किरदार का प्रगटावा है भी ये पुलिस ऑफिसर है। हुण जे कोई किरदार तो उह जिहा ना बनावे तो कल्ली पुलिस ऑफिसर की वर्दी पा ले, हैरानी की गल है। जिहड़ी वर्दी उहनूं सलामा करवाउंदी है, उही वर्दी उहनूं दोषी भी बना सकती है। इसे तरह धर्म की दुनिया च है, हर धर्म के कुछ निश्चित चिन्ह ने, जोगी के निश्चित चिन्ह ने, सनातनी धर्म में चिन्ह ने, मत्था टिक्का तेड़ धोती का खाई, पर किरदार की है? हथ छुरी जगत कसाई। इसे तरह सतगुरु जी ने जोगी नूं आख्या सी, इसे तरह मुसलमान नूं आख्या सी भलिया, इसे तरह सिख की कहानी है। जे सिख भी ये भुलेखे विच रवे भई मैं शायद बाहरले किसी श्रृंगार दे नाल मालिक दे घर कबूल हो जाएगा, नहीं, किरदार नूं बनाउण लग्गिया 10 पातशाहियां लगियां ने, 10वें जामे विच जाके इहनूं श्रृंगार दिता है। किरदार बनाउण लई बहुत वक्त लगता है, वर्दी पाउण लई वक्त नहीं लगता, बहुत थोड़ा जिहा वक्त लगता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहंदे जिहड़े भादों के भरम दे विच पै के भुल्ले हुए ने, उन्होंने हेठ तो दूजे नाल लाया होया, पर श्रृंगार इहो जिहा प्रगट करते हैं भी साडा रब नाल प्यार है,
वो कदे तीर्थां ते जांदे ने, कदे भुखे रहिंदे ने, कदे वस्त्र विहीन हुंदे ने, कदे किसी तरह की तपस्या करते हैं, कदे कुछ बाणियां निश्चित करते हैं भी मैं इन्नियां पढ़ के मूँह च प्रसाद पानी पाउणा है। इते आदि को सारी जितनियां गल्लां ने ना ये बाहर दियां ने, शंगार दियां ने। मैं फिर बार बार बेनती करना है ताकि भुलेखा ना लग जाए। शंगार बहुत चंगा है जे नाल किरदार भी होवे, शंगार बहुत चंगा है जे किते नाल किरदार भी होवे। गुरु ने एक दो चीज़ां इकट्ठियां करियां सी, कह लगे खालसा मेरो रूप है खास, पर सिक्खा तेरी जिम्मेवारी है किरदार किहो जिहा होवे। खालसे मैं हूँ करो निवास, तेरे अंदरों कोई बूहा खड़कावे सिख देख के तो उहदे चों गुरु की सिक्ख्या बोले। तेरे अंदरों कोई बूहा खड़कावे, अंदरों कोई किसी धी भैन नूं मेरी नज़र नाल देखण वाला विकारी जीवन प्रगट ना होवे, तेरे जीवन विचों गुरु गोबिंद सिंह लभे, तेरा जीवन इहो जिहा होवे, शिंगार भी इहो जिहा होवे। याद रखियो मैं तो हैरान होना है, बाबे लहणे का शिंगार सी, सिर ते पंड चुकी हुई है घाह दी, ते उहदे विचों मिट्टी गारा चोंदा है, झोने विचों कढ़िया होया घाह, उहदी बन्नी हुई पंड चुकवाती गुरु नानक साहब ने, सारा शरीर लिबड़िया पिया। सुलखणी ने पूछया भी आ की कीता है? कहन लगे शिंगारे अज लैणी नूं। आपां किन्नी वारी हथ धोने, किन्नी वारी किन्ना कुछ करने, शिंगार किहो जिहा। जिस दिन बाबा अमरदास नूं गुरगद्दी मिली, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। फिर बेनती करा बाबा जेठा जी की आप कई बारी अर्ज कर चुके हुए हैं, सिर तो पैरों तक टोकरी ढोंदियां मिट्टी च लथ पथ ने। जिदा रिश्ता होया ते जिदन गुरगद्दी दिती, मिट्टी का ही शिंगार करया होया सी। अपने मन च झात मार के देखिए साडा किरदार किहो जिहा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी जा रहे ने ते जंगल दे विचों दी विचरदियां नाल कुछ गुरु के सिख ने, ते वो जांदियां होइयां उन्होंने एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनी किसी बच्चे दे रोण दी आवाज़ है। घोड़े दियां लगामां खिच्चियां, रोक लिया। साहब कह लगे हो जे जंगल च बच्चा नहीं रो सकता, इन्नी छोटी आवाज़ बच्चे की, पता करो कौन है। ते पता किया कोई मां मुसीबत विच ना होवे, पता करो कौन है। पता किया उन्होंने आके दसे सतगुरु कोई बड़ा करूप जिहा बच्चा ते गंदगी नाल लिबड़िया होया है, की हुक्म है? बहुत गंदा सतगुरु देखा नहीं जाता। हजूर ने दोबारे कोई बचन आख्या, घोड़े तो उतरे, अपने चोले दियां बाहां टंगियां, कमर कसा बन्निया घुट के, उस बच्चे नूं चुक के उहदे कपड़े उतारे, उथों पानी दा लैके प्रबंध ते बच्चे नूं नवाया, गल च पाए परने दे नाल लपेट के सीने नाल ला के कहन लगे ये कुथरा नहीं है, ये तो सुथरा है। याद रखियो पता नहीं की पाना वरतिया, बस एक बारी रोया गुरु हरगोबिंद साहब के सीने नाल लग गया, मुड़ के जिंदगी भर नहीं रोया। आप भी हसिया ते लोकां नूं भी हसाया, मुड़ के नहीं रोया। मना किते किरदार वाला शिंगार करना है, गुरु दर ते प्रवान हो जाएगा। कामन तो शिंगार कर
जब पहला कंत मनाए, छेजे कंत ना आवी, इवें बिरथा जाए। किते ना होवे कंत आवे ही ना, तू शिंगारी बैठी रहे शिंगार दे मान विच भई मैं ते बहुत शिंगारी हुई है, किते हुई ना हंकार रह जाए। गुरु चरणों विच सखी काजल हार तंबोर सबे किछ साजिया, 16 किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे कर आवे कंत तां सब किछ पाइए, हर हाँ कंते बाज शिंगार बिरथा सब जाइए। बाणी पढ़ ले सिखा, बाणी इस तरह पढ़ते नूं गुरु मिल जाए। ककार पावे सिखा, बारी सरूप इहो जिहा बना, लोग वेखण इहदे च गुरु गोबिंद सिंह वसदा है। इहो जिहा जीवन असी 100 वारी हथ धो के भी पवित्र न कर सके। भगत पूर्ण सिंह वर्गिया ने लोगों की गंदगी चुक के हथ पवित्र कर ले, उहदे हथ एडे पवित्र हो गए साईं चुमदा होएगा। तेरा एडा वधिया जीवन, तेरी एडी साफ अख, तू नौजवान धियां बच्चियां दे कपड़े बदल देवें, तेरे मन च फुरना तक ना आवे विकारां दा। प्यार वालियों, मैं बार बार बेनती करां, गुरु अगे जरूर अरदास करिया करिए, सतगुरु जिथे मैनू बहुत कुछ संसारी पदार्थ दिते ने, उत्थे मैनू किरदार भी बख्श, उत्थे मैनू किरदार बख्श। मैं एक चंगा इंसान होके इस धरती धर्मशाला में विचर सका। हजूर जी कृपा करते ने, लख श्रृंगार बनाया कारज नहीं कीत। वो किसी काम नहीं होना, स्नेह तो है नहीं। जित दिन दे बिनसी, तित वेले कैसन प्रेत। जेड़ा दूजे हेत लाया ना, जदों तेरी देही बिनसन लगनी है, इन्हां लोगों ने तेनू एक नवा नां देना है। देखो, एक नाम मापे रखते ने, एक ना कई बारी किते वजों पै जाता भी फलाना बंदा डॉक्टर है, फलाना बंदा ठेकेदार है, फलाना बंदा वकील है, किते करके भी ना पै जाता। चोर है, डाकू है, कोई भी ना ले लो। सब कहते जिहड़ा सारी जिंदगी तेनू नाम नहीं ना मिलिया, वो तेरे प्यार करने वाले ने तेनू देना। वो की, जित दिन देखे बिनसी, तित वेले कैसन प्रीत। पकड़ चलायन दूत, जब किसे ना देनी भेत। जेड़े दूतां दी पकड़ विच आके अपना जीवन गुजार रहे हैं ना, विकारां दे विच, ये भेत बाहर किसे नूं नहीं मिलता। निक्का जिहा दृष्टांत दे दियां, फिर गल अगे तोरांगे। इनू बड़ी तवज्जो दे के बरीकी नाल समझना। मन लो मैं इकट्ठा कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भावें संगत विच बैठा है, देखण नूं इउं लगदा भी आपां गुरु कोल गुरु दा संग कर रहे हैं, पर भुलेखा है। जे गुरु कोल बैठ के भी कथा करदियां भी मेरी सोच विच काम है ना, जिन्ने श्वास मेरी काम की याद विच निकले, वो मैं संगत काम की कीती है, गुरु की नहीं कीती। संगत विच बैठा कथा करने, कोई इहो जिहा विचार आ गया जिहदे नाल मेरी नहीं नेड़ता बनती, मैं अपने विचारां नूं मोड़ दे दिता, ते मोड़ दे के मैं उन्होंने निशाना बना के कथा करन लग पिया। सच करके जानियो, ये संगत ईरखा की संगत है, गुरु की नहीं है। मैं अंदरों किहदे ख्याल रख के जीवन गुजार रही। इस तरह मैं जदों जमां की पकड़ विच हुन्ना, विकारां की पकड़ विच हुन्ना, बाहर तक किसी को कुछ भी पता नहीं लगता मेरे अंदर की चल रहा। पकड़ चलायन दूत, जब किसे न देनी भेंट। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा गेट। जदों मेरी अंदरली मनुखता लुटी जा रही है, तो इन्हां मात पिता भैन भरावां सके संबंधियां चो जनन पिता लोक सुत बनता,
कोई ना किसकी तरया, कोई किसी का सहारा नहीं। ये तो एक खिन मात्र में छड़ बैठते ने जिन्होंने मना तू खेत लाई बैठा, जिन्होंने तू सनी पाई बैठा। हथ मरोड़े तन कपे श्यामू हुआ सेठ। इन्हां विकारां दे अधीन कमाए हुए कर्मां दे कारण हथ मरोड़े, बहुत पछताउंदा मैं की कर बैठा। तन कपे, तन बार बार कल्पदा है। श्यांगो हुआ सेत, श्या मतलब काला, सेत मतलब चिट्टा। कदे काला हुंदा है रंग, कदे चिट्टा हुंदा है रंग, भाव रंग बदलते हैं। पछतावे विच कल्पदा है, मैनूं जो करना चाहिए सी मैं क्यों नहीं किया। एक बेनती और करा, बड़ी तवज्जो दे के समझियो। भरम भावें किड्डा ही सोहना लगदा होवे, ਇਹਦੀ हकीकत है इन्हें एक ना एक दिन टुट जाना है। भरम कदे भी साबित नहीं रहिंदा, भरम अज तक कदे भी साबित नहीं रहिंदा, भरम हमेशा टुटदा है। ये गल वखरी भी हो, मैनूं कितना प्यारा लगता है, पर उन्हें टुट जाना एक ना एक दिन। हथ मरोड़े तन कपै श्याम हुआ सेठ, जिहा बीजे सोलने कर्म सुंदड़ा खेत। कहते किसी को की इतराज करना है, तेरा ही बीजिया होया तेरे सामने है, ये तो तेरे ही खेत है, तेरा ही पाया हुआ बीज है, तेरे ही कर्म कमाए हुए ने। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। जेड़े मालिक की शरण विच आ गए, मालिक उन्हां दी बड़ी पैज रखता है। एक बेनती करा, जे किरदार नहीं भी बन सकिया हो जा मालिक दे दर ते आके भी, ते मालिक दा बना लियो हो जा जिहदा किरदार होवे। तुसीं कदे देखियो कोई गां मੱਝ भी है ना, बंदा डंडा मारन लग्या देखदा है, मालिक कौन पिछे। एक कुकर भी, कुत्ते नूं भी बंदा डंडा मारन लग्या वेखदा ना, मालिक इहदे नाल है। सब कहने तेरे कोल कुछ भी नहीं हुंदा, इन्ना ते कर लै। नानक प्रभ शरणागति, ओदी शरण विच ही आ जा, वो सोचेगा ये मेरा है, ते फिर तेनों डुबण नहीं देवेगा। चरण बोहित प्रभ देत, बोहित का अर्थ हुंदा बेड़ा जहाज। वो तेनों अपने उपदेश का बेड़ा दे देगा जिहदे विच डुबदा नहीं। से भादोए नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेठ। से भादोए नरक न पाइए, ये ना सोचो भी जो भादो च मर गया वो नरक नहीं पैंदा, ये ना सोचो, ये नहीं इहदा अर्थ। से भादोए नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेठ। जिन्हां ने हेठ गुरु नाल ला लिया, सने गुरु नाल ला लिया, गुरु के सने विच खूबी है, वो मनुख नूं डुबण नहीं देंदा, जीवन की बेड़ी नूं पार कर देंदा है। आओ प्यार वालिओ, गुरु चरणां नाल जुड़ के एक झूठे हेठ नूं छड्ड दईए, सच्चा गुरु का हेठ पाल लईए, फिर मालिक दीआं रहमतां दे असीं पात्र बन जांगे। भुल्ला ना चितारदे होए प्यार नाल आखो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।